People say that the number of times you are being called in the CT command task, you are the bad person, the cooperative person. So how many times you were called? Only one time. Only one time. How many times you were called? 4 times. So I was also called 7 times. Okay, let me tell you about myself. I was not called even a single time. Listen, this is the best thing. I was not called by anyone. Okay. In my team, there were 6 members, and none of the boys ever called me in the command task. Okay. And how many individual obstacles you did? I did only 7. 7. Listen, 7. So how many? Same is the case. I was on the 7th obstacle when the whistle blew off. Okay, how many you did? I was on the 12th. I done it 11. Okay, and I did 14. So varieties and things are like this. I was repeater, so that's why maybe I did 14. So the thing is, these tasks are not going. The guy to, who did only one. Okay. These are nothing. Yeah. Yes, these are nothing. The totality. What they assessors also the totality of your performance. Approach, your courage. Yeah, the GTO, they are experts. You cannot just befool them. Okay. And befooling is in the sense when some people are there that when they get an idea, they shout in front of that GTO so that he listen. He is listening each and everything. You have to be 100% in the GTO, in the obstacle that has been given, not to show someone that how you are performing. Yes. आप लोग 10 लोगों को 12 लोग, अगर आप 12th मैन हो और 12th पीछे भी खड़े हो और वहां से भी आप कुछ आइडिया दे रहे हो ना, तो वो सुन रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फ्रंट पे हो कहीं पे हो, तो कोई दिक्कत है, आप अपना प्रेजेंट रहो। और एक जो इम्पोर्टेंट होता है, सबको पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, 2 ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग। ये सबसे इनिशियल स्टेज है कि वो एसेस करता है कितने पानी में है ये लड़का, सबको इनिशियली वो करता है, वहां से जज करना शुरू होता है। तो जीडी में कभी भी बकवास नहीं करनी, शोर मत मचाओ। शोर ज्यादा पॉइंट्स है तुम्हारे पास तो क्या रोको ना, उन्हें रोको। कितना कंट्रोल पेशेंस कितना है तुम्हें, कंट्रोल करो। जीडी के लिए मैं कहना चाहता हूँ ना कि कुछ भी जो है ना प्री डिटरमाइंड होकर मत बैठो। अगर कुछ टॉपिक दे दिया तो तुम 2-4 पॉइंट सुन लिए और कि मैं 2-2 मिनट पे एक पॉइंट बोलूंगा, नहीं, तुम वो डिस्कशन में रहो, पॉइंट्स तुम्हें खुद वहां से मिलेंगे एंड यूर कन्वर्स विद द करंट टॉपिक। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डे टू डे हैपनिंग से तुम परिचित हो, तो तुम्हें डेफिनेटली पॉइंट्स आएंगे। And do you know one thing I applied in GTO, in ZD, mainly ZD, that when the boys were shouting, I lowered my voice, and that worked. When I lowered my voice, I mean immediately they also lowered their voice, and ultimately what happened in the group planning exercise, I was actually before doing this, I would like to tell you that this person is the only person who got recommended in the batch of 20. So we are from different batch, and he was from different batch. Yeah. So it is also an appreciation for him. He is from Assam. Yeah. Okay. Rahul is from Assam, and he is, as a human, as we said, mentality and the thinking are all literally same. Opinion may be different. Then what happens in the interview? The interview I am discussing only my case only. For the psychological task, I just did my best. Whatever I could do, I did it only. Whatever I have seen in the picture, I have written that story. Just no prepared. I had no story. Yeah. So only one story. The 12th one, the blank one. That one I have prepared. I prepared at home, and I have written that. And others, I have just prepared there only. Yes, sir. These were the doubts that most of the people have during psychology and in GTO. सब में मिथ है भाई। हर चीज में आप आओगे एक मास्क पहन के आ जाता है कि भाई जैसा हम देखते बहुत अच्छा लगा, इसका हो सकता है रिकमेंड हो सकता है। व्हेन यू सी इन जीडी, वही सेम बंदा, वही सेम इंसान डिफरेंट दिखेगा। ही शाउटिंग, ही इज pointing finger to others, he is telling others to shut up. As a personality wise, that when there is a group of 10 people, so be like that in 10 when you are in barracks or when you are in test. Don't be a different personality. This is the thing. नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जीडी तो ठीक है, जीडी एक चीज है, आपको अपने ग्रुप में ना लगे जो है ना, वो ग्रुप ऑब्स्टिकल्स रेस में दिख जाएंगे। जब स्नेक रेस होता है ना, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, आपको बहुत सारे लड़के वहां पे दिख जाएंगे कि कौन वहां पे एक ही पर्सनैलिटी का है और कौन वहां पे वो है ना बनावटी कर रहा है, पुलिंग लेग टाइप, और वो जीडीओ को भी वहीं पे दिख जाता है। अब कुछ होते हैं ना, वो शोर मचा रहे थे, उनका काम ये होता है, अबे लाल मत टच करा भाई, ये मत टच करा भाई, क्या करते तू पागल है, तू ये वो गालियां देते हैं। ऐसा नहीं है, जो पकड़ा जाता है ना वहां सब दिख रहा है जीटीओ को। तो डोंट बी, इफ यू आर काम कंपोज, इफ यू आर एक्टिव, तो एक्टिव दिखो वहां। अगर तुम्हें लगता है कि साला गालियां देनी है सबको, तो शुरू से देते चलो, जो उसे वहां हर्ट ना, उसका एक्सप्रेशन चेंज ना हो, है ना, सेम है ना। बाकी अब आता है इंटरव्यू के तो बहुत ही सारे वो है, कोई कहता है मेरा 20 मिनट चला, कोई कहता है 10 मिनट। एक पहली बात,
30 मिनट से कम तो मोस्टली नहीं लेते, और अगर किसी का लेते हैं ना तो उसे खुद नहीं पता होता, क्योंकि इतना बह जाता है वो भावनाओं में ना कि उसे ऐसा लगता है यार मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया. Actually, इसका guys, अच्छा कारण होता है. do you know what I believe? That the peer, no, I will tell it. They're listening. Okay, it depends upon the PIQ. How long it would be? Yeah, it depends upon your PIQ. Exactly. Whatever you have done in your life, if you are written a lot of there in your hobbies, in your interest, in your sports, फर्क पड़ता है. yeah, then लाइफ स्पोर्ट्स इन एनसीसी एनीथिंग. definitely in the sports I have never participated in any inter college or inter school events. I have only participated in intra college. So definitely my interview was not that much of long. No, It not was that just much long, but reasonably long, yes. not that much of long. What happened with me, actually, I was a sports person. I did various, on district level and school level, on the university level also. I was a RD holder. I did Republic Day camp, also the Guard of Honor in the Republic Day camp. But the thing is, I was also having hobbies like guitar playing and diary writing, but there was not any single question that was asked from these hobbies or these interests or some my achievements were also not being asked. But differently, my interview goes 80% of my interview is on sports. And that is the main achievement I think in my life. I had the whole interview comes around that only, and the basic questions that they'll ask about your family and nothing much. And some basic questions are like you have to prepare, yaar. Sit and prepare, write them, rewrite, and then speak, then write, speak, then write. The interview is like this only because questions are very bad. What is your family, your father, your mother, your brother? Questions are very bad. Hobbies क्या है? अगर गिटार बजाते हो, कब बजाते हो? अगर क्वेश्चंस ये सबसे पूछेंगे कॉमनली कि रूटीन क्या है, डेली रूटीन, तो यार कम से कम 2 महीने पहले शुरू कर दो ना. जैसे भी तुम हो, जो भी हो, 2 महीने पहले शुरू कर दो. अपने आप को अपने आप को ढालो कि आपने लाइफ में किया क्या है, वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपके फैमिली से, आपके रिलेशंस कैसे, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ. वही है ना, यही बेसिक क्वेश्चन. आपको कोई जैसे अगर नहीं भी प्रिपेयर करोगे, अगर आपका सब कुछ सही, आपको लगता है कि यार मैं बहुत हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन वन थिंग दैट इंटरव्यू में ना बी ट्रूथफुल. हाँ वो ये बात है. Whatever you are, Best. represent yourself. And If you bluff, you'll never go select. Never, you can साइकोलॉजी में never. जो आपने एसडी लिखी थी ना, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, उसको बहुत अच्छे से लिखो और दिमाग में क्योंकि अगर आप सच लिखोगे ना तो आप वहां भी सच ही बोलोगे. वो एसडी से बिल्कुल कंपेयर करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बिकम. तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आपने जो वैट में लिखा है, जो वर्ड जो आपने पहले रिफ्लेक्ट किया वैट में, टैट में, एसआरटी में, वो क्रॉस मतलब कभी कभी क्या होता है ना, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में बच्चे ये लिख देते हैं, मतलब जो OLQs होते हैं उनको पता होता है पहले से ही, वो झाड़ देते हैं वहाँ पे. वैसा करने से कोई नहीं है. जो हमारा अच्छा क्या हुआ कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे, मुझे तो याद भी नहीं है, 2-4 याद होंगे, 15 होते हैं, 14 होते थे, 15 होते हैं, 15 OLQs. मेरे घर में लगता है 5-6 होंगे. तो 5-6 होंगे, 10 बंदे लाएंगे. 1-2 तो होंगे. यार मेरे अंदर सब है यार, मेरे अंदर 20 है. मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे तो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ये भी अगर OLQ तो ये तो है. भाई जितने एक्सपीरियंस करके बनाया. हाँ सच में मैंने एक्सपीरियंस करा कि भाई ये 5 SSB है, तो मैंने वो राइट रीराइट जो होता है ना, जैसे एनसीसी में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, नहीं सुनो, जैसे एनसीसी में चले जाते हैं तो वहां क्या हो जाता है, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, ऐसे सीधे खड़े होना, ये वो, तो वो लेयरिंग हो जाती है, लेयरिंग. तो उसमें क्या होता है, हम जैसे सीनियर को देखा, जैसे इंटरव्यूअर को देखा, तो वहां क्या हम डरना शुरू कर देते कि ये तो हमारा सीनियर है, तो ऐसे खड़े रहना, ऐसे रहना, तो वहां नर्वस क्रिएट हो जाती है, नर्वसनेस होती है. तो मैंने पिछली एसएसबी में ये नोटिस किया कि यार मैं कुछ ज्यादा ही मतलब फॉर्मल हो जाता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही सर, तो वहाँ थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता था. आप ऑफिसर बने नहीं हो, जब आप बन जाओगे सब चीज सिखा देंगे. तो अभी आर्मी ऑफिसर की क्वालिटीज इंडल्ज करो, पर वहाँ जब बैठे हो ना तो वहाँ तुम एक बच्चे हो, बी लाइक अ बच्चा होंगे. वहाँ भी हम क्या करते हैं, वहाँ अफसर बन के बना देंगे, उसको करवा देंगे, तुम्हें बना देंगे, सब ट्रेनिंग में सब कर देंगे, तुम्हारा स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन सब कुछ कर देंगे. तुम्हें जो बेसिक चीज लोग वो आप लेके आओ, वो अपना प्रेजेंट करो, बेस्ट करो. मैं जब लास्ट एसएसबी में मेरा दूसरा ये कॉन्फ्रेंस था, मैंने जब लास्ट कॉन्फ्रेंस जब मैं आउट हुआ था, वहाँ पे जो हमारे ये प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने आगे ब्रीफिंग किया, उन्होंने ये कहा कि व्हाट यू विल बी इन नेक्स्ट 40 years ऑफ योर लाइफ, और इन एकेडमी और इन आर्मी, रिप्रेजेंट व्हाट यू आर 20 years बिफोर. आपने जो 20 साल पहले किया है ना अपने दोस्तों के साथ, वही आप करेंगे आगे. बहुत मुश्किल लौटा ऐसा दमदार. इसकी एक बात और बता रहा हूँ, ये पता क्या, इंडिविजुअल कुछ होते हैं ना, ओपन अप होने में टाइम लेते हैं लड़के. तो इसका क्या होगा, इसकी एसआरटी मुझे मतलब जो साइकोलॉजी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ होगा, इसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि इंडिविजुअली कर रहा था, जहर है.
लेकिन जब ये जीटीओ में था, लिटरली यकीन मानो यार आप लोग, ये मेरे ही ग्रुप में था, तो हम इसे काउंट भी नहीं कर रहे थे। काउंट जैसे होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम इसे लास्ट में भी कोई नाम ही नहीं ले रहा था इसका कि ये भी हो सकता है। ऐसे कोने में खड़ा होता था, पीछे से छोड़ा ये कर सबसे पीछे, तो मतलब कोई काउंट भी नहीं कर रहा था। हाँ, कोई सुनता नहीं था, लेकिन कौन सुनता था? जीटीओ सुनता था। मतलब यही बात है, अगर तुम पीछे खड़े हो, कोई मौका नहीं दे रहा तो क्या कहते हो, ऐसे रेस मार के उड़ के पड़ जाओगे। वो वाली बात तो कहते ना कि आपका कमांड टास्क जिस लेवल का है, अगर टफ लेवल का है तो आप मतलब रिकमेंडेशन के बिल्कुल करीब है। मेरा कमांड टास्क फुद्दू था। मेरा भी मैं लिटरली बोलता हूँ मेरा भी फुद्दू। एक बॉम्ब था, 2 हेल्पिंग मटेरियल थे, 3 हेल्पिंग मटेरियल थे, छोटू सा स्ट्रक्चर था, आराम से सिर्फ फंसाना था, फल का क्या कैंटिलीवर बोलते वो बनाना इसमें था। कहाँ बोला भी कि फल कलम लगाओ, कैंटिलीवर बस वही करना था, और मेरे से एक बार में वो भी नहीं हुआ। जब तक ना इंस्ट्रक्टर ने हेल्प नहीं दिया जीटीओ ने, तो वो भी नहीं हुआ। तो वो डिपेंड नहीं करता। हाँ, लेकिन मैंने ना अपने जो मैंने बुलाया था अपने फ्रेंड्स को मुझे असिस्ट करने के लिए, मैंने उनका बहुत अच्छा यूज किया। उनको मैंने कभी भी डिसरिगार्ड नहीं किया, उनको मैंने बुलाया। क्या बात, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअली मेरे को क्या लगता है, मैंने जो देखा यहाँ पे जीटीओ क्या देखता है, आप उसमें एफर्ट कितना लगा रहे हो। अब जीटीओ बस वही देखता है, ये भी देखता है ना कि अगर कहीं आप फंस गए तो मेंटल स्टैमिना कैसे काम हो कि नहीं हो कि आप मतलब फंस गए हो तो फिर भी एफर्ट कितना लगा रहे हो। अगर आपके पास ये सुसाइडल टेंडेंसीज तो नहीं होगा, सुसाइडल टेंडेंसीज एक्सेप्ट नहीं होगा। अरे मैं भी गिरा यार, बहुत भयंकर से रोल हो गया तो स्नेक रेस में। कमांड टास्क में भाई, कमांड टास्क में उसको बोला लगाओ 15 सेकंड 40। अब मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, 100% गिरा, पूरा किया हुआ। अब मेरे को हंस रहा है वो, मैं पर हो गया अपना भी, क्या दिक्कत है। हाँ, तो भाई जैसे अभी बात करते हैं ना लोग कि कमांड टास्क जिसका बाहरी हो उसके नंबर है, या फिर जिसे लास्ट में बोला जाए वो हो, सबका अलग अलग है, सब मगर ऐसा भी नहीं कि अगर तुम बहुत अच्छे हो तो अच्छी बात है, तुम अपना 100% हर चीज में अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन उनको पता है कि 100% एकदम सब कुछ किसी के अंदर नहीं होता, कुछ जो गलतियां हैं, अब तुम एकदम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हर चीज। They do not expect us to be officers, they expect us to be trainees। जैसे वो बोलते हैं ना कि जैसे कमांड टास्क किसी का हार्ड या स्लो, उसका रीजन ही सिंपल है। जैसे मेरा क्या था कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रंट पे ही था, मतलब आइडिया दे रहा था। एक और था मेरे चेस्ट नंबर 17 मेरे साथ था, तो हम कहते फ्रंट पे थे, हम ही आइडियाज दे रहे थे और लोग जो सपोर्ट ही कर रहे थे। तो हम दोनों का जो कमांड टास्क था वो उसी लेवल का था। वो जो लड़का था दूसरा वाला, वो ऑलिव ग्रीन का था, तो उसके आइडियाज भी बहुत ज्यादा थे, मतलब कि ऐसे पट्टा लगाना, उसके बहुत सारे आइडियाज अच्छे थे। और कोचिंग की प्रमोशन नहीं सेलेक्ट हो गया नहीं, वो बाहर हो गया ना। तो क्या था मामला, मतलब वो आइडियाज बहुत सारे दे रहा था, तो ऐसे ही उसकी कमांड टास्क में ली गई।